सो देखो बेटा, तो लास्ट टाइम ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ टॉपिक इलास्टिसिटी। तो इस टॉपिक के अंडर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रिगार्डिंग गल कीती सी ਅਸੀਂ, है ना। और जो बेटा यंग्स मॉडुलस है, सो वो ਆਪਾਂ डिफाइन ਕੀਤਾ ਸੀ नॉर्मल स्ट्रेस टू longitudinal strain। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्चुअली ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ longitudinal strain ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਓਵਰ ओरिजिनल ਲੈਂਥ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। एक्चुअली L जो है ना, नो डाउट वो लेंथ भी है। वो क्यों लेंथ है? क्योंकि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਰਸ, ਔਰ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਹੈ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ L ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ L ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ shortest distance between the points of 2 points of applications of forces, है ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ A ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ B, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ weight ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। और आ डिस्टेंस जो है ये L है और वो लेंथ ऑफ वायर दे बराबर आ रहा। पर अगर मान लो थानू कह रहा कि आ एक वायर है बेटा, इस वायर दी लेंथ है L, इस ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ वायर L है, तो आ है थोड़ा पॉइंट A जिथे फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्ट कर रही है, और इथे है थोड़ा अप्लाइड फोर्स, है ना। फिर ਤਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਡੈਲਟਾ L ਓਵਰ L ਆਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਓਨ weight, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਰ, ਉਹਦਾ weight ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ weight ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੋਏ, ਬਟ ਸਮਾਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। और क्योंकि आम तौर पे किसी भी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है, इस करके जिहड़ा ओहदा सेंटर ऑफ मास है ओहदे ज्योमेट्रिकल सेंटर ते होएगा। तो आ इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आ गया पुत्र, इत्थे इसका वेट आएगा, है ना। तो इस कारण करके हुण ये जिहड़ी वायर है, इस डायग्राम जिथे मैं टिक लगाया वा, निशान मार्क किया वा, तो इस डायग्राम दे विच क्योंकि बॉडी अपने वेट दे करके एक्सटेंड हो रही है, तो इस केस दे विच जिहड़ी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਡੈਲਟਾ L ਓਵਰ L, L ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ A
ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਜੋ ਕਿ L/2 ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ। तो अगर ये क्लैरिटी नहीं होएगी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਓਵਰ L ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ L ਓਵਰ L ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ L ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਚ L ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ L ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਲੈਂਥ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ that is L। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अंकुर लगी समझ? हाँ जी सर। मोहनदीप? यस सर। ठीक है बेटा। हुण लिखो, हुण एक होर पॉइंट जिहड़ा वा वो भी देखो। वो है कि जो बेटा इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है ते एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है। तो तुसी मतलब जिदा आ एनर्जी डेंसिटी दी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है तो आपां इस अबव इक्वेशन नु यूज करके एनर्जी डेंसिटी दी एक्सप्रेशन E एंड स्ट्रेस दी टर्म च भी लिख सकते हैं, E एंड स्ट्रेन दी टर्म च भी लिख सकते हैं ना। तो ये कल भी मैं शायद गल दसी सी तुहानू, पर हुण जिहड़ी मैं गल तुहानू दस्सण लगा वो की है पुत्र, देखो कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है उसकी जो एग्जैक्ट शेप है वो तो बेटा डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मटीरियल दे नेचर पे, है ना, और रेंज दे ऊपर। बट आम तौर पे जो थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है वो एक लिमिट तक ता सॉरी एक लिमिट तक ता वो स्ट्रेट लाइन है, एक लिमिट तक जिस तरह इत्थे है O2A। बट उस तो बाद इहदे विच स्लाइट डेविएशन आ जाती है और उस तो बाद बेटा इहदी नेचर वेवी है और उस तो बाद ये ग्राफ इस शेप च आके अल्टीमेटली ब्रेक कर जाएगा। तो O2A तो आ जिहड़ी A तक दी वैल्यू है तो तुसी देख रहे हैं O2A तक स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो आप कह सकते हैं कि O जो है ओनू इलास्टिक लिमिट बोल सकते हैं और विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो हुण तुहानू पता वा कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन दी जिहड़ी रेशो है पुत्र वो है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो कि यंग्स मॉडुलस हो सकता वा अगर ये वायर है, जो कि बल्क मॉडुलस हो सकता अगर ये बल्क मटेरियल है ना, अगर शेप चेंज हो रही है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो सकता। हुण ये जिहड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दी स्लोप है अप टू ओ सॉरी अप टू ए तक, तो ओ तो लैके ए तक बेटा अगर तुहानू इस लाइन दी ओ ए लाइन दी स्लोप ऑफ लाइन ओ ए वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। दूसरी गल बेटा जो स्ट्रेस है
और स्ट्रेन है ਉਹਦੀ वेरिएशन जो तुसी नोट कर रहे हैं, तो आ ਜਿਹੜਾ पोर्शन है ए बी पोर्शन, तो इस पोर्शन ਦੀ जिन्नी ज्यादा लेंथ होएगी उन्ना ਤੁਹਾਡਾ मटीरियल मोर डक्टाइल होएगा, और जिन्नी इस पोर्शन ਦੀ लेंथ घट होएगी ਤੁਹਾਡਾ मटीरियल उन्ना मोर ब्रिटल होएगा। और आ ਜਿਹੜਾ सी पॉइंट है ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਜਿਹੜੀ स्ट्रेस है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मटीरियल ब्रेक कर गया। और ब्रेकिंग स्ट्रेस नेचर ऑफ मटीरियल ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਫੋਰਸ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। तो स्ट्रेस और फोर्स ਨੂੰ कंफ्यूज नहीं करना बेटा। ਜਿਹੜੀ ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो ब्रेकिंग फोर्स ओवर एरिया है, ये बड़ा क्लियर कर दिया। तो ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है, मतलब थिक वायर का जो ब्रेकिंग फोर्स है वो लार्जर है थिनर नालों, बट ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू जिहड़ी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, वो एरिया ते डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल एंड टेम्परेचर है। और विद द राइज इन टेम्परेचर स्ट्रेस घटेगी, डिक्रीज करेगी। और नाल ये भी याद रख लो कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी नेचर ऑफ मटीरियल दे नाल फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर ते डिपेंडेंट है। विद द राइज इन टेम्परेचर विद द राइज इन टेम्परेचर सॉरी with the rise in temperature coefficient of elasticity decrease करता वा, है ना। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नो डाउट ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੂ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बट क्योंकि जो वॉल्यूम ਨੂੰ चेंज करना ना ਉਹਦੇ ਲਈ उस मटीरियल ਦੇ ਉੱਪਰ हर पॉइंट ਤੇ प्रेशर एग्जर्ट होना चाहिए वा, ना फोर्स लगनी चाहिए है। तो इस कारण करके बेटा बल्क मॉडुलस ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ चेंज इन प्रेशर भी बोल सकते हैं। चेंज इन प्रेशर का मतलब कि अगर तुसी वॉल्यूम ਨੂੰ चेंज करना वा ਤਾਂ प्रेशर ਨੂੰ भी चेंज करना पएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो चेंज इन प्रेशर ਨੂੰ चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी बाय वी और माइनस साइन क्यों लिखा जाता, क्योंकि बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस ये पॉजिटिव टर्म्स है। तो और सानू पता कि जदों ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਡੀਪੀ ਓਵਰ dv over v is equal to minus v into dp by dv ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ थोड़ा बहुत फिजिक्स ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ। ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਪੀਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ पी dv plus v dp is equal to 0, तो जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ v dp over dv, बट आ वाली वैल्यू ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦਾ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ ਫॉर ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। तो अगर ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਫॉर ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ
तो एडियाबैटिक प्रोसेस ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ PV ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਗਾਮਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਾਮਾ CP ਓਵਰ CV ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਨੋਐਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਲਈ 1.67 ਹੈ ਔਰ ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਲਈ 1.4 ਹੈ। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਨਿਕਾਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ P into gamma V gamma minus 1 dV plus और गामा P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਓ। मतलब कोई भी ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ उसका जो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस है गामा टाइम्स प्रेशर है। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ याद रखने है ना, इस टॉपिक ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। तो ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, तो एक गल होर याद रखनी है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है तो ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ। ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ओरिजिनल ਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ 6-7 ਟਾਈਮਸ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਬਰ ਹੈ। तो रबर इलास्टोमर्स ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ OA along path number 1, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ A to O along path 2। और आ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਕਰਵ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਕਰਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਕਰਵ ਹੈ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਦੇ ਲਈ, तो ਇਹਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਔਰ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਥਸ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਅਨਲੋਡਿੰਗ तो ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਸਟੋਮਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਕਰਵ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस। और जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ना ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕਰਵ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, मतलब એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, U is equal to half into stress into strain। तो ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। तो ਇਹਦਾ मतलब जो एरिया है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, टू यूई, तो 2UE होएगा, है ना। ये ध्यान च रख लेना, फॉलो कर रहे हैं गल बेटा। एकम यस सर। आर्यन,
अंकुर यस सर। देखो भाई हुण ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बेटा इस पूरे टॉपिक की ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं तो ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ A ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆ ਵਾਇਰ ਹੈ बेटा ਮਟੀਰੀਅਲ B ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ तो ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ वो दो डिफरेंट मटेरियल्स दी बनी है A एंड B दी है ना और ये सीरीज च कनेक्टेड है तो सीरीज दे विच और दूसरा जब तक सानू स्पेशली मेंशन ना होए तो असी वायर नु मासलेस कंसीडर करना तो थ्रू आउट इस पूरी वायर दे अंदर जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है वो F ही होएगी 2F नहीं कहना 2F नहीं कभी भी कहना F ही होएगी है ना तो मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ इस बॉडी के ऊपर जेड़ियां मैं दो फोर्सेस लगा रहा दोनों इक्वल बट ऑपोजिट भी है ते नाल दोनों दा लाइंस ऑफ एक्शन सेम है तो ये दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन साइज ले और चेंज इन साइज दे विच बेटा वॉल्यूम दा साइज भी चेंज हो सकता लेंथ भी हो सकती बट अगर आ तुहाडे कोल दो बॉडीज है बॉडी इको ही है ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗਾ और ये टॉर्क का कंसेप्ट आ गया ना ये टॉर्क पैदा हो रही है रोटेशन तो हुण ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ फर्स्ट डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ फोर्स तो F है और सेकंड डायग्राम की भी रीस्टोरिंग फोर्स F ही है बेटा मतलब 2F नहीं कहना है ना तो हम जी डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हमेशा इन पेयर एग्जिस्ट करती है तो इस कारण करके डिफॉर्मिंग फोर्स को डबल नहीं करना वो सिंगल ही रखनी है वो पेयर च होनी है तो पेयर दे एक पार्ट को असी डिफॉर्मिंग फोर्स बोलना ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इनू कर सकते हैं फिर बेटा देखो पॉइजन्स रेशो का कंसेप्ट की है ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली अगर थोड़े सामने एक वायर है जिसका डायामीटर है D लेंथ है L हुण अगर आप इसते डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और ये वायर की लेंथ भी इंक्रीज हो गई और डायामीटर भी डिक्रीज कर गया तो लेंथ इंक्रीज है डेल्टा L डिक्रीज इन डायामीटर है डेल्टा D तो हुण बेटा इस केस दे विच जदों असीं पॉइजन्स रेशो नूं डिफाइन करदे हां तो पॉइजन्स रेशो की वैल्यू है लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन जिहड़ी है वो है चेंज इन डायामीटर ओवर ओरिजिनल डायामीटर ते लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ विद नेगेटिव साइन वो क्यों पुत्र क्योंकि जदों लेंथ इंक्रीज करेगी तो डायामीटर ने डिक्रीज करना है ना जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस है अच्छा हुण जो पॉइजन्स रेशो है इसकी जिहड़ी वैल्यू है अगर पॉइजन्स रेशो की वैल्यू हाफ है तो यदा मतलब है कि थोड़ी जिहड़ी वायर है जदों आपां इहनूं
एक्सटेंड करांगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, डायामीटर डिक्रीज करेगा, बट इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये याद रखना पुत्र कि अगर थोड़ी वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहिंदा वा ऑन एक्सटेंशन, मतलब लेंथ चेंज करती है, डायामीटर डिक्रीज करता, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहिंदा तो सिग्मा की वैल्यू हाफ आएगी, है ना, पॉइजन्स रेशो हाफ होएगी। ये पॉइंट नू याद रखना जरूरी है। दूसरी गल कि जिहड़ी पॉइजन्स रेशो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव पॉइजन्स रेशो का मतलब है कि जो लेंथ इंक्रीज करेगी तो डायामीटर भी इंक्रीज करेगा, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेप्स है जिहड़े तुसी याद रखने हैं। और प्रैक्टिकली पॉइजन्स रेशो की वैल्यू 0.4 ते 0.2 दे इन बिटवीन होंदी, बट थ्योरेटिकली आप मान लेने आ कि पॉइजन्स रेशो की वैल्यू 0 to हाफ होंदी है, बट जो प्रैक्टिकली है 0.2 to 0.4 तक लाई करती है। ये कुछ बेसिक गल्लां वा जिहड़ियां कि तुहानू इलास्टिसिटी वाले टॉपिक नू पढ़ते वक्त थॉरोली याद रखनियां पैणगियां, है ना, दिमाग च रखनियां पैणगियां। अच्छा, हुण बेटा जदों तुसी इलास्टिसिटी की गल करते हैं तो इलास्टिसिटी के कंसैप्ट नू हुण असी फर्दर भी अप्लाई करांगे। तो उहदे लई हुण मैं शिफ्ट कर रहा हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स दे विच बेटा असी लिक्विड्स एट रेस्ट के कंसैप्ट नाल डील करते हैं। हुण इहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की है। अच्छा, एक गल जिहड़ी मैं इलास्टिसिटी च दसनी सी पुत्र वो की है, देखो हुण जिद्दां मान लो आ एक बॉडी है। हुण अगर तुसी इस बॉडी दे अपर सरफेस ते फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो तुसी देख रहे हैं ये फोर्स बेटा सरफेस दे परपेंडिकुलर। तो अगर तुसी इस फोर्स नु एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाल डिवाइड करोगे तो ये नॉर्मल स्ट्रेस बनेगी, है ना। अगर तुसी अगर तुसी किसी बॉडी के ऊपर ध्यान दियो बेटा, फोर्स लगा रहे हैं जेडी की सरफेस दे टेंजेंशियली एक्ट कर रही है, ता इस फोर्स नु अगर एरिया ना डिवाइड करोगे तो वो टेंजेंशियल स्ट्रेस बनेगी। पर अगर पुत्र हुण थोड़ा ध्यान रखियो, जिथे बेटा नॉर्मल स्ट्रेस आएगी उथे चेंज इन साइज होएगा, और जिथे टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगी उथे चेंज इन शेप होएगी। और अगर मान लो मैं थोड़े सामने कहना कि आ फोर्स है जेडी की सरफेस दे नाल एंगल थीटा बना रही, हुण इस केस दे विच इस फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, अगर तुसी एफ साइन थीटा नु एरिया ना डिवाइड कर दोगे तो वो नॉर्मल स्ट्रेस होएगी जो कि साइज नु चेंज करेगी, और एफ कॉस थीटा नु जदों एरिया नाल डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगी टेंजेंशियल स्ट्रेस जेडी की शेप नु चेंज करेगी। तो ये स्टेप्स समझने थोड़े लिए बड़े जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। इनू कर सकते पुत्र। देखो इथे मैं एक होर गल तुहानू दसदा, हुण देखो इथे मैं तुहानू एक होर गल दसन लगा कि जिस तरह मान लो आ एक वायर है, तो फोर्स इस तरफ लगाई जा रही बेटा एफ। तो इस केस दे विच देखो बे हुण ये जिहड़ा थोड़ा
सरफेस है आ वाला एंगल थीटा है, तो ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀ फोर्स लग रही है, ਜਿਹੜੀ आ फोर्स लग रही है, आ भी एंगल थीटा ते लग रही है ना, ज्योमेट्री ਦਾ concept आ गया। ਹੁਣ अगर पुत्र आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, आ ਜਿਹੜਾ इंक्लाइंड सरफेस है ਇਹਦੀ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है, तो इधर ਨੂੰ फोर्स ਦਾ कंपोनेंट आ गया F cos थीटा। ਹੁਣ अगर ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ F cos थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, A ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ, तो ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ A ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एंगल थीटा होगा बेस ए डैश है, हाइपोटेन्यूज ए है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा, तो ए डैश की वैल्यू ए cos थीटा आ जाएगी। तो इस तरीके नाल सॉल्व करना है ना। हुन और अगर आ ए है पुत्र तो आ ए डैश है, ठीक है, तो वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये इलास्टिसिटी का टॉपिक है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ के इंपॉर्टेंट है। तो ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, याद रखो, देखो पुत्र ਉਹ मैं दस दिना, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ स्प्रिंग ਦੇ ਬਾਰੇ डील करनी है। स्प्रिंग ਜਿਹੜਾ स्प्रिंग है ना, ਉਹਦੀ अंदर रीस्टोरिंग फोर्स kx ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, माइनस साइन ਤਾਂ डायरेक्शन ही दसदा, k ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ फोर्स कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, x ਹੈਗੀ ਹੈ एक्सटेंशन। ਹੁਣ f ਨੂੰ रीस्टोरिंग फोर्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ अगर यंग्स मॉडुलस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਾਂ f ਓਵਰ a, f बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स ਹੁੰਦੀ ਆ, a ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ है ना, आ फार्मूला बड़े काम आंदा, इनू हुन भुल्लियो ना पुत्र। तो इहदे अकॉर्डिंगली f इज इक्वल टू y a डेल्टा l ओवर l है ना। तो आ जेड़ा वा ये तो होगी चेंज इन लेंथ x दी जगह पे, और आ है रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर आप इनू इस एक्सप्रेशन दे नाल इक्वेट करिए, क्योंकि x की हुंदा चेंज इन लेंथ, f हुंदा रीस्टोरिंग फोर्स, तो वायर दा स्प्रिंग कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस a ओवर l है। ये गल नूं भुलना नहीं पुत्र कि जिहड़ी वायर है ना, ਉਹਦਾ स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट YA by L है। ये भी ध्यान च रखनी गल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, क्योंकि हुण अपना इस हफ्ते नैक्सट वीक तक काम खत्म हो जाना है सारा। तो फिर मार्च दे विच जदों आपां रिवीजन करनी है, फिर सारे इंपॉर्टेंट कंसैप्ट्स नूं जोड़ के मैं तुहानूं दोबारा कंपीटीशन लई करवाऊंगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है, बट है बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इत्थे तक कर लूंगे पुत्र अज।